Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Rooted, a channel dedicated to provide quality guidance for history optional. Now, today I'm here to tell you a step-by-step guide of how you should prepare history optional. And this is very important because if you follow these steps, you will be able to have a strategy, and following a proper strategy, you definitely will be able to get 300 plus marks. Now, before I begin, I want to tell one thing, that just like any other optional, history optional also comes with its own set of judgments. For example, there are many people who say that history optional is a lengthy optional. Now that I consider is completely wrong. The reason being that you cover 80% of your entire GS if you are preparing for history optional. उसमें अलग कुछ नहीं है GS में, आपका पूरा पूरा GS का history portion इसमें cover हो रहा है. The rest 20% that is left is only facts, because history optional में आपको dates, facts उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. तो prelims के लिए जो portion है वो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, and that also only 20% भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया. बस hardly जो fact वाले portions है ना वो prelims के लिए you have to read. Otherwise your entire history section is going to be prepared. Next very important thing is that many people who criticize history optional, they say कि it's difficult to score, but this is completely wrong. Because if you see, we have had Shruti Sharma, she got rank 1. We have Siddharth Shukla, we have Chitra Mishra, we have Ishwar Kumar, and these are just few names, and all of them have got 300 plus marks. So if you follow the right strategy, you definitely will get 300 plus marks, and that I can assure from my side. इसमें क्या है कि problem ये है ना कि students they just mug up the notes and they go and sit in the exam hall. Now that is not how you should do it. You have to have a strategy, and today the step by step that I'm going to tell you, you will be able to devise your strategy very clearly. Okay, so let us begin. See, the first thing that you have to do is you have to go through the syllabus, and going through the syllabus is very important, because when you go through the syllabus ना तो आपको समझ में आएगा, you will get an idea that what are the things that you have to study in each paper. When I say go through the syllabus, I mean go through the syllabus mindfully. Be mindful when you are reading कि अच्छा ये चीज़ है, इससे किस तरीके से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कनेक्ट हो रहा है, इससे किस तरीके से हमारा थर्ड जो टॉपिक है वो कनेक्ट हो रहा है. समझ में आया? सो गो थ्रू दैट सिलेबस. The second very important thing that you have to do is you have to understand the structure of the paper. ठीक है? Structure of the paper. And structure of the paper, along with that, the third very important thing that you have to do is you have to go through the PYQs. Now here I am going to break down all of these 1, 2, 3 into parts and explain. But before that I want to tell you something. If you are someone जिसका history already background था तो ये चीज़ें करना आपके लिए बहुत easy होगा. But if you are someone who did not have history as your background, then do not worry. This history optional is a very easy and predictable optional. Okay, if you go through previous 20-25 year questions, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो common आ जाती हैं आपके एग्जाम में. Okay, so this thing that I'm going to say, for example, going through the structure, going through the PYQs, maybe initially you will not be able to understand. Do not have to worry. If you are taking this optional, and I highly suggest you take this optional, then what you do is wait for at least 1 or 2 months, do your gradual readings, and then follow this entire step by step what I'm going to tell you. You also will be able to grasp it very easily. Okay, so now let us begin. See, first thing is structure. यहाँ पे syllabus वगैरह तो मैं आ रही हूँ अभी structure में. So we have to understand कि हमारा पेपर कितना है और पेपर किस तरीके से डिवाइडेड है. तो हिस्ट्री में क्या है, हमारे पास हिस्ट्री ऑप्शनल में वी हैव 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में हमारे पास 2 सेक्शन है. वी हैव सेक्शन ए एंड वी हैव सेक्शन बी. साइमल्टेनियसली हियर ऑल्सो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. अब वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों पेपर कितने मार्क्स का है हमारे पास, दोनों पेपर ईच पेपर इज 250 मार्क्स. दैट मीन्स टोटलिंग अप टू 500 मार्क्स. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो 250 मार्क्स है ना ये कैसे आ रहा है. ठीक है, इसमें हमारे पास पेपर के ऊपर ही ये चीज़ लिखा हुआ होता है दैट वी हैव 8 क्वेश्चंस. यहाँ पर हमारे पास क्या होता है 1 2 3 4. हियर ऑल्सो वी हैव 5 6 7 8. तो टोटल एवरी पेपर वी हैव 8 क्वेश्चंस. ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन बोथ पेपर्स में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपल्सरी. ठीक है, एंड रेस्ट यू हैव टू चूज 3 क्वेश्चंस टेकिंग 1 फ्रॉम ईच सेक्शन. इसका मतलब क्या है कि या तो मैं यहाँ से 2 ले सकती हूँ या तो मैं यहाँ से 2 ले सकती हूँ. ठीक है, इसमें सेक्शन ए हमारा क्या है, सेक्शन ए है एंशिएंट और सेक्शन बी है हमारा मिडिवल.
सो यू हैव टू डिसाइड. आप जब थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, आपको समझ में आएगा कि आप किस चीज़ में ज़्यादा ईजी कंफर्टेबल हो. either whether you are more easy at ancient, whether you are more easy at medieval. For example, for me, I am more easy at ancient. ठीक है, तो मुझे ancient history ज़्यादा पसंद है. So what I am going to do is आई एम गोइंग टू डिसाइड कि व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग, मैं सेक्शन ए जो है मेरे माइंड में क्लियर होगा कि मुझे 2 क्वेश्चन जो है वो मुझे सेक्शन ए से प्रिपेयर करना है. ये मैं एग्जाम हॉल में जाके नहीं डिसाइड कर रही हूँ. दिस आई एम डिसाइडिंग हियर नाउ व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग, सो दैट आई कैन प्रिपेयर इन दैट वे. सी दैट इज व्हाट इज नोन एज अ स्ट्रैटेजी. कि मुझे एग्जाम हॉल में जाने के पहले आई हैव टू बी थरो, कि ये मुझे पता होना चाहिए कि ये एक स्ट्रक्चर होता है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में अगर प्रीवियस हम 10 साल के क्वेश्चन देखें तो हमें इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 जनरली उसमें से या तो स्टोन एज से रहता है, या तो हमारे पास स्टोन एज या फिर हड़प्पा से क्वेश्चन रहता है. ठीक है, और एक हो गया तो अगर वैदिक पीरियड से एक क्वेश्चन दे दिया तो दे दिया वहाँ पे. तो ये अगर मुझे पता है कि ये 3 सेक्शन जो है इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मुझे पता होगा कि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मेरा, ये तीनों अगर मैं टॉपिक अच्छे से पढ़ लेती हूँ तो हाई चांसेस आर कि क्वेश्चन नंबर 2 मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर लूँगी. ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. आपको जाना है और स्टडी करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हर साल आपको चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं. एंड इफ़ यू गो थ्रू द पेपर्स यू विल रियलाइज कि क्वेश्चंस कैसे आता है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज डिवाइडेड इंटू A, B, C. तो मैं जो बोल रही हूँ ना, स्टोन एज, हड़प्पा एंड वैदिक एज, तो इसका मतलब ये और ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 3 टॉपिक के कॉम्बिनेशन में आते हैं. समझ में आया? तो अगर मेरा एंशिएंट ईजी है, I will study this. So that is there. I am prepared for question number 2. Next, same thing that you have to do is question number 3. उसका भी क्या होगा? उसका भी we will have A, B, C. Same for question number 4. इसका भी same क्या होगा? A, B, C. और ये सिर्फ paper 1 का नहीं है. This is same for paper 2 as well. Okay? So this is how you have to understand. So that's why I am saying going through the PYQs. These 2 things are interlinked. ठीक है? तो ये आपने एक चीज़ कर लिया. तो आपको क्या है नेक्स्ट, मैंने बोला कि आपको डिसाइड कर लिया आपने कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो बाय माई मी, तो फॉर एग्जांपल आई डिसाइडेड कि मुझे एंशिएंट से 2 करना है, मुझे मिडिवल से 1 क्वेश्चन करना है. अब दिस डज नॉट मीन कि आई कैन लीव रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स. वाई? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 इज मैपिंग. एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो कि अगेन इट इज अ कंपल्सरी वन, तो इसमें अगेन देर आर इंस्टेड ऑफ 3, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता है ना कि 5 क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, 5 क्वेश्चन एज इन क्वेश्चन नंबर 5 में वी विल हैव A, B, C, D, E एंड ईच ऑफ 10 मार्क्स. तो इससे होता है हमारे पास 50 मार्क्स. और ये जो 5 है ना, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये पूरा सिलेबस कवर करता है. सो इवन इफ़ यू डिसाइड कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड कर लिया कि ये वाला पोर्शन मुझे पढ़ना है, दैट डज नॉट मीन कि आप रेस्ट ऑफ द चीज़ों को इग्नोर करके जा सकते हो. देखो, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया होना चाहिए ऑफ वेरियस टॉपिक्स दैट आर देयर. यू शुड नो कि अलग अलग टॉपिक में क्या है, ताकि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा किस में आता है? हमारा आता है मिडिवल में. तो क्वेश्चन सेक्शन ए तो एनीवेज आपका सॉर्टेड है. सेक्शन बी में आपको मिडिवल इंडिया जो है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे मिडिवल से एक क्वेश्चन करना है एंड लेट अस अज्यूम क्वेश्चन नंबर 6 आपको अटेम्प्ट करना है, आपने वो उस तरीके से एनालिसिस कर लिया कि मुझे क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करना है, दैट डज नॉट मीन यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनीथिंग. ओके, सो यू हैव टू रीड एंटायर मिडिवल इंडिया, यू हैव टू हैव एन आइडिया ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट आर देयर, द सिलेबस, वॉट एवरी टॉपिक हैज़. बट the question number 6 portion, for example, that portion you have to do it properly so that you can attempt in the exam hall. Am I clear in this? Okay. Next thing that you have to do, paper 1 के लिए वो है mapping section. Now mapping is a different fan base in itself. ठीक है, mapping क्या है? It's a very very scoring section. Scoring section क्यों? ये भी 50 मार्क्स का आता है. ठीक है, इसमें आपको 20-25 कभी 20 कभी 25 साइड्स आपको दिया रहेगा. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको वो आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू राइट 30 वर्ड्स ऑन दैट. ठीक, सो इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इट प्रॉपरली एंड इफ यू आर एबल टू राइट सेंसिबल थिंग्स इन दोज 30-40 वर्ड्स, देन डेफिनेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि आपको उसमें बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव. अंडरस्टूड? सो मैपिंग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. देर आर मैनी पीपल हु फियर मैपिंग. सी, मैपिंग इज समथिंग दैट इज गिविंग यू मार्क्स, सो वाई डू यू हैव टू फियर मैपिंग? मैपिंग का ना एक अपना स्ट्रैटेजी होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको सी फॉर मैपिंग सेक्शन यू जनरली नीड समवन टू शो यू.
फॉर एग्जाम्पल मैं अपने क्लासेस में क्या है ना कि मैं अपने क्लासेस में मैपिंग को बहुत अच्छे से कराती हूँ, बिकॉज द बैच साइज दैट आई टेक इज़ ओनली ऑफ 40 स्टूडेंट्स एंड राइट नाउ ऑलरेडी एनरोलमेंट्स आर गोइंग ऑन. यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में ना मैंने एक इंस्टीट्यूट है दैट इज़ IS दिल्ली इंस्टीट्यूट. आई हैव पार्टनर्ड विद देम एंड वी हैव आवर फाउंडेशन बैचेस एंड टेस्ट सीरीज रनिंग ओवर देयर. सो ओवर उसमें क्या है, वी हैव 40 स्टूडेंट्स एंड डेलिबरेटली आई कीप 40 स्टूडेंट्स. द रीज़न बीइंग कि उससे ना आप इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हो स्टूडेंट्स को. ऐसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई विल बी एबल टू डू दैट इंडिविजुअली इन पर्सन. दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ क्लास ऑफ लाइक 200 मार्क्स. ओके, सो वी हैव टू कीप दिस थिंग in our mind. So anyways, the details I'll put in the description. You can go and see it from there. For now, coming back to mapping. मैपिंग का स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए ना कि आपको सबसे पहले तो यू हैव टू हैव अ करेक्ट मैप. जो यूपीएससी में मैप यूज़ करते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैप. ऐसे जो मार्केट से हम जाके मैप खरीदते हैं ना, ब्लैंक मैप, वैसा नहीं है. यहाँ का जो मैप है ना दैट इज़ हम एंशियंट इंडिया का मैप. दैट मीन्स वो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया. तो एंशियंट इंडिया का जो हमारा टेरिटरी था, इट इंक्लूड्स ऑल दोज टेरिटरीज. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू गेट द राइट मैप. द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू नो हाउ टू फॉर्म grids, right? Then another thing is you have to buy a book, map book. और उसमें क्या है, आपको अपना एक लिस्ट बनाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स जो क्वेश्चन से पूछा जाता है. और आपको लिस्ट में क्या करना है, 20 साइट्स. हर से नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, हरप्पन सिविलाइजेशन, टेम्पल्स, मतलब इनसे ना आपको 20 मेन प्रोमिनेंट साइट्स के लिस्ट बनाने हैं. बिकॉज इससे ज़्यादा अगर आप बनाओगे तो आपको याद नहीं रहेगा. ठीक है. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि यू कैन मेक इवन लेस देन 20 शुरू में याद करने के लिए. आप एक 15-15 का क्या मतलब, जो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप 15-15 साइट्स का एक लिस्ट बना लो. उसके बारे में आप उसका लोकेशन देख लो, उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख लो. ठीक है. एंड व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उसको बार बार पॉइंट आउट करो, मतलब बार बार उसको ग्रिड पे प्रैक्टिस करो. एंड देन व्हेन यू आर डन विथ इट, और उसके बाद अगर आपको PYQ से लगे कोई साइट आपका मिसिंग है, कुछ है, तो वो आप जाके फिर उसको दोबारा से प्रिपेयर कर सकते हो. अंडरस्टूड. सो मैपिंग, एंड इट्स अ वेरी स्कोरिंग थिंग. तो डोंट हैव टू वरी अबाउट मैपिंग. इफ़ यू डू माई क्लासेस, बिल्कुल भी मैपिंग का मतलब टेंशन लेने की ही ज़रूरत नहीं है. ठीक है. मैपिंग इज सॉर्टेड. ओके. So this is about paper 1 and understand how you get 250 marks. इसमें कैसे आता है कि हर सेक्शन से ना हमारे पास क्या होता है 50. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन डिवीजन ऐसा होता है, इट विल बी 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स. ठीक है. तो 15 क्या हो गया हमारे पास, 30 + 20 इज इक्वल टू 50. और इसी तरीके से क्या है कि हमें 5 अटेम्प्ट करना है. सो दैट मीन्स 5 × 50 विच इज इक्वल टू 250 मार्क्स. ओके. दिस इज कॉमन फॉर both the papers. So this is one strategy. Before moving on to paper 2, what is the book list? ठीक है. ये क्वेश्चन में होता है कि हम बुक लिस्ट क्या मतलब कैसे क्या पढ़ें, कौन से जगह से पढ़ें. सो उसमें अगर मैं बोलूँ ना, तो फॉर पेपर वन what I suggest is डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स. अपने आप को बहुत महान समझने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप जितना ग्राउंडेड रहोगे, जितना रूटेड रहोगे, उतना आप एक्सेल करोगे एग्जाम में. स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, एंड बाई बेसिक्स हियर आई मीन NCERT. ठीक है. आई मीन NCERT क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, क्लास 6 और 7 का जो NCERT है ना, यू हैव टू डू दैट न्यू NCERT ऑफ क्लास 6 and 7 एंड ओल्ड NCERT ऑफ क्लास 11. ठीक है. 6-7 का न्यू एंड क्लास 11 का old NCERT. You have to cover this. Now this you have to follow it with now class notes. ठीक है. Second thing is class notes, very very important. अब here comes the main play. Class notes जो available हैं in general, those are completely outdated class notes. And I'm very sorry to say this, but if somebody is taking those class notes as the base and going and giving the exam, तो you can be assured कि 300 मार्क्स मिलना बहुत डिफिकल्ट है. until and unless आपने बहुत ज़्यादा खुद से प्रिपेयर करके उसको अपडेट किया है, बहुत ज़्यादा आपने PYQ सॉल्व किए हैं, and all of those things. Just a second. So don't just don't just depend on class notes and go to the exam hall. आपको उसमें और अभी जो मार्केट में अवेलेबल क्लास नोट्स है उस पर डिपेंड करके तो बिल्कुल भी आप मत जाना. ओके. सो दिस इज़ वन थिंग. इफ़ यू कम एंड अटेंड माई क्लासेस, आई कैन अश्योर यू फ्रॉम माई साइड दैट आफ्टर द एंड ऑफ 6 months यू विल फील एग्जाम रेडी. आपको अंदर से वो चीज़ आएगा दैट येस आई एम रेडी फॉर द एग्जाम. द रीज़न बीइंग,
I give individual attention, and along with that I can confidently say that my way of teaching is updated exam oriented teaching. I you know I teach not just कि किस तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बट आई ऑल्सो टीच यू टू थिंक एंड इंटरलिंक द टॉपिक्स. तभी आप उस तरीके से लिख पाओगे और आपके 300+ मार्क्स आएंगे. ठीक है. सो टेक योर डिसीजन वेरी वाइजली. इफ यू आर अ पर्सन हु आर जस्ट डिसाइडिंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड जॉइन अ फाउंडेशन कोर्स, आई हाईली सजेस्ट दैट invest your time and money somewhere very very wisely, and if you trust in me, you are not going to be disappointed in any way. Okay, my assurance. Okay, and I have 7 years experience, so do not worry, you are exactly in the right, you are going to be in the right hands. Okay, now coming to this class notes का thing कि एक तो आपको class notes करना है. Along with that, if you are not taking my class notes, the next thing that you can do is you have to go through इग्नो मटेरियल. इग्नो का क्या है? एमए का मटेरियल. ठीक है, आपको इग्नो का मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज उपिंदर सिंह. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उपिंदर सिंह जो है ना, उपिंदर सिंह मैम का जो बुक है, दिस इज अ थिक बुक. ठीक है, ये थिक है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो पढ़ना नहीं है. यू हैव टू रीड दैट. वाई यू हैव टू रीड? बिकॉज यूपीएससी में क्या है ना कि क्वेश्चंस आर कमिंग जिसमें सीधा कोट करते हैं उस बुक को. the chapters are divided into certain sections और सीधा सीधा उन सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं. सो डेफिनेटली यू कैन नॉट स्किप दिस बुक, बट देन आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली कौन कौन से पोर्शंस आपको पढ़ने हैं. एंड दैट इज नॉट, एंड इट इज़ अ वेरी ईजी रीडिंग. जस्ट दैट आपको कोई चाहिए जो आपको बता दे कि हाँ इसमें ये बोलना चाह रही है ऑथर. सो आफ्टर दैट व्हेन यू रीड एंड द सेक्शंस, इफ इट इज़ वेरी स्पेसिफाइड, यू आर गोइंग टू बी थरो विद दिस. ओके, तो हमारा पॉइंट क्या है कि वो जो इतना मोटा बुक है, हमें क्या करना है, उसको पतला बनाना है. किस तरीके से? सिलेक्टिव रीडिंग से. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर सेक्शन ए. ओके, बुक लिस्ट फॉर दैट. नाउ रिगार्डिंग बुक लिस्ट फॉर इफ आई गो फॉर सेक्शन बी पेपर 1, तो उसमें क्या है, उसमें फर्स्ट थिंग डेफिनेटली वी हैव एनसीईआरटी क्लास 7 का एनसीईआरटी, दैट इज न्यू एनसीईआरटी, एंड डेफिनेटली क्लास 11 का ओल्ड एनसीईआरटी जो सतीश चंद्र हमारे पास है. देन व्हाट यू हैव टू डू इज, and here along with Satish Chandra, along with that what you also have to do, one second, yes, along with that what you also have to do is कि एक बुक है हमारे पास किसका? जेएल मेहता. ठीक है, जेएल मेहता इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनका क्या है? वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, दोनों बुक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है. वंस यू स्टार्ट रीडिंग द बुक, यू आर गोइंग टू आपका मन करेगा कि वो पूरा बुक हम पढ़ ले. ओके, सो बी अश्योर्ड ऑफ दैट थिंग. उसमें से भी आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है और कौन सा पोर्शन आपको स्किप करना है. सो यू फॉलो दैट एंड दैट इज गोइंग टू सफाइस. अलॉन्ग विद दैट क्लास नोट्स तो है ही, वी कैन नॉट स्किप दैट, बिकॉज क्लास नोट्स क्या है, आपको सारी चीज़ें ना एक जगह पे कंसोलिडेटेड करके देता है. सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज़ टू बी डन. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर पेपर 1, section A, section B. Decide how you are going to, what is going to be your strategy. Next we move on to paper 2. ठीक है, next we are moving on to paper 2, and in this paper again हमारे पास क्या है, हमारे पास question number 1 and question number 5, these are compulsory, and question number 1 is further divided into A, B, C, D, E. 5 का भी same thing, A, B, C, D, E. ईच क्वेश्चन कैरिंग 10 मार्क्स. और ये दोनों इस तरीके से डिजाइन होता है कि आप पूरा एक बार सिलेबस का आपको आइडिया होना चाहिए, बिकॉज इट कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर एरियाज ऑफ द सिलेबस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस शुरू का पोर्शन, लास्ट का पोर्शन. मतलब लेट अस अज्यूम फॉर एग्जांपल मॉडर्न इंडिया, आप अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो तो आपको पूरा मॉडर्न इंडिया जो सिलेबस है उसका एक आइडिया होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बस बिफोर 1918 का पोर्शन पढ़ लिया, या मॉडरेट्स के बाद वाला पढ़ रहे हैं, आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कांग्रेस वाला पीरियड पढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं है. ठीक है, आपको सारे पीरियड जो हैं इंक्लूडिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस, यू हैव टू हैव एन आइडिया ऑफ दैट. ओके, नेक्स्ट अगेन फॉलोइंग द सेम थिंग, यू गो एंड सी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग अगेन हियर क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा कंपलसरी है, 6, 7, 8. तो इसमें आप लास्ट 5-6 ईयर्स देखो एंड देखो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में हर बार रिपीटेडली कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, 3 में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है. अगेन चूज द सेम थिंग कि मुझे यहाँ से 2 करना है, यहाँ से 1 करना है, या फिर यहाँ से 1 करना है, यहाँ से 2 करना है. सेक्शन बी क्या है हमारे पास यहाँ पे? सेक्शन बी हियर इज वर्ल्ड हिस्ट्री. ओके, एंड फॉर मी दिस इज वेरी स्कोरिंग.
एंड आई फील कि इसको कवर करना भी काफ़ी ईजी है कंपेयर टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है. ये क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन जो है ना, सेक्शन, दैट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड और इसको पढ़ना भी ईजी है और इसमें स्कोरिंग भी काफ़ी ज़्यादा है. सो माई सजेशन वुड बी, इफ़ यू आर comfortable, then go for section B. Try to choose 2 from here and 1 from here. Okay, that is again up to you to decide. तो ये आपको करना है. And telling you about this book list for this. तो हमारा जो पेपर 1 का सेक्शन A है, that is modern, यहाँ से क्या है, फर्स्ट थिंग अगेन NCERT. NCERT में भी कौन सा NCERT हमारा, क्लास 8 का न्यू NCERT, एंड बाकी जो है हमारा क्लास 11-12 वाला जो ओल्ड NCERT है वो तो करना ही है. साथ ही साथ क्लास नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अलॉन्ग विद दिस वी हैव टू रीड 2 बुक्स. ठीक है, रिमेंबर हियर इन वी ऑल्सो हैव पोस्ट मॉडर्न. ठीक है, पोस्ट मॉडर्न भी हमारा है, तो हमें ऐसे बुक्स उठाना है जिसमें हमारा ये जो पोस्ट मॉडर्न वाला जो है ना, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कवर्ड. सो हियर वी हैव टू हैव बिपिन चंद्रा एंड शेखर बंदोपाध्याय. शेखर बंदोपाध्याय का बुक जो है ना, उसमें जो बुक है दैट इज प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर. ठीक है, तो उसमें ये पूरा पोर्शन कवर्ड है, प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर, दैट बुक. एंड दिस बिपिन चंद्रा का हमारे पास है एक इंडिपेंडेंस के पहले वाला, एंड दैट अनदर वन वी हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस. सो यू हैव टू टेक बोथ, एंड इन तीनों बुक्स का आपको सिलेक्टिव रीडिंग करना है. ठीक है, देखो एज अ स्टूडेंट ऑफ ऑप्शनल, इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं किसी का भी क्लास नोट्स हो, चाहे मेरा भी क्लास नोट्स हो, इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ के जाऊँगा, अपना वैल्यू एडिशन नहीं करूँगा एंड आई एम गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, ऐसा नहीं होता है. ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा. एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. एंड व्हाट आई डू पर्सनली इन माई क्लासेज इज आई ऑल्सो गिव यू हिस्टोरियोग्राफी. ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी एंड नेम्स ऑफ स्कॉलर्स, दिस इज़ वेरी क्रूशियल, बिकॉज नेम्स ऑफ स्कॉलर्स जो है उनका ओपिनियन हर टॉपिक में ना, कुछ स्कॉलर्स होते हैं जिनका ओपिनियन आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो उसका लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ इफ़ यू अटेंड माई ऑप्शनल क्लासेस. ओके, बी इट फाउंडेशन बैच और बी इट टेस्ट सीरीज बैच, सो दैट एडिशनल मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा. एंड रेस्ट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम समवेयर एल्स और यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू मेक योर सेल्फ. ओके, एंड नाउ कमिंग टू वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन. वर्ल्ड हिस्ट्री अगेन सेम थिंग, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, डिसाइड कि कौन सा क्वेश्चन नंबर जो है वो आप अटेम्प्ट करने वाले हो. मतलब इफ़ द पैटर्न इज काइंड ऑफ सेम, तो कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपको ईजी है, एंड दैट सेक्शन डू इट वेरी वेरी प्रॉपरली एज आई टोल्ड फॉर पेपर 1. एंड रेस्ट इफ़ यू आस्क अबाउट द बुक्स और द जहाँ से पढ़ना है, सो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज नॉर्मल लॉवे. ठीक है, सॉरी, नॉर्मल लॉवे. सो वन डेफिनेटली वी हैव नॉर्मल लॉवे तो हो गया. साथ ही साथ व्हाट यू हैव टू डू इज देयर इज अनदर बुक ऑफ अर्जुन देव. ठीक है, अर्जुन देव, दिस बुक, द थिंग इज कि ये दोनों बुक इज़ एसेंशियल. ओके, वाई, बिकॉज नॉर्मल लॉवे जो है वो मोस्टली कवर करता है द पीरियड आफ्टर 20th सेंचुरी, एंड उसके पहले वाला जो पीरियड है उसके लिए यू हैव टू रीड अबाउट, यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक ऑफ अर्जुन देव. ठीक है, सो दिस इज एंड दिस अलॉन्ग विथ योर दिस क्लास नोट्स, दिस शुड बी योर सोर्स ऑफ रीडिंग फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री. ठीक है, साथ ही साथ डेफिनेटली यू हैव टू अलॉन्ग विथ ऑल ऑफ दिस यू डेफिनेटली हैव टू डू योर PYQs एटलीस्ट प्रीवियस जो है ना, कि प्रीवियस ट्राई टू कवर दिस क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस एटलीस्ट 5 to 6 years वो आपको करना ही है. इफ पॉसिबल ट्राई टू solve the PYQs of at least 10 years, and you are going to definitely find several questions that are repeated, and with the right strategy definitely you are going to score more than 300 plus marks. Along with that, do not forget about test series, and do test series from somewhere where you know the batch is small. For example, me, I have only 40 intake, and this is not just to promote my course, but छोटा अगर बैच में आप करोगे ना टेस्ट सीरीज, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि आपके आंसर्स जो है वो सीधा फैकल्टी चेक करके देगा आपको. मतलब ओनली आई एम गोइंग टू चेक द पेपर्स, आई एम गोइंग टू गिव यू फॉलो अप रिगार्डिंग योर इंट्रोडक्शन, रिगार्डिंग योर कंक्लूजन. एट टाइम्स आई विल ऑल्सो, इट हैपन्स कि आई सिट अलॉन्ग विद माई स्टूडेंट एंड गिव देम अ फीडबैक हैंड टू हैंड. सो दैट इज नॉट पॉसिबल इन अ large batch. So good luck and take your decisions wisely, form a proper strategy, and definitely you are going to get very good marks. Thank you, and do subscribe to this channel, and go and subscribe to our Telegram channel as well, where I give notes of whatever I teach. Thank you.